Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Comedy ka Pitara by Gopal. Today we will learn some interview questions of Node.js, and I hope after watching this series and this series of video you will be able to answer each and every question related to one interview or Node.js interview. So let's start. How to install Node.js? Go to nodejs.org website and then download LTS version, install it, and then click on next, then click on finish. After this, verify it is installed or not. So go to your cmd command, and there type node.js space uh, space version space v, then npm space v. If version appear node.js in is installed, वर्जन अपेयर होगा इसका मतलब आपका नोट जेएस इंस्टॉल हो चुका है. इंस्टॉल वर्सेस कोड, डाउनलोड फ्रॉम कोड विजुअल स्टूडियो डॉट कॉम. इंस्टॉल वीएस कोड, ओपन वीएस कोड, देन क्रिएट प्रोजेक्ट फोल्डर with create folder example node app like, and open vs code, then click file, open folder, select node app, then how to create file in that, inside vs code, click on new file, name you can type anything like index.js, add column console.log, node hello node.js, and open terminal, vs code, press settle plus backtrack key, and or you can do menu. In menu you can go to terminal, add a new terminal, and how to run node.js file in terminal. Node index.js output will be hello node.js. This will be the output of your code, because you are printing console.log hello node.js. Write name in front of node, then click on run. You will get the output. This is how Node.js runs your file. And step 7, what happens internally. Node.js index.js command is given. Node.js sorry, Node.js runtime starts. VS Engine converts JS code into machine code. Code execute outside browser. Output shown internal यूजिंग npm. npm को कैसे यूज़ करते हैं? इनिशियलाइज योर प्रोजेक्ट npm init y creates package.json, install package example, npm installs express, and then step 9, run server file example, server.js const http equals to require http dot create server, require response dot end server running. Listen, 3000 means it is a timeout period. The where run node server.js and open in your local browser. It can be 3000 or something. Port number. Auto restart using nodemon. Install npm global nodemon, and run nodemon index.js. Automatically it will restart your server on file change. Coding question which can be asked, what is node.js? Node.js allows us to run js on the server, not in browser. node.js जो होता है हमें अलो करता है js को सर्वर पे रन करने के लिए, ना कि ब्राउजर में रन होकर. index.js console.log, it will print hello from node.js. रन के लिए वही नोड के आगे फाइल का नाम लिख दीजिए, हो जाएगा रन. एंड सिंगल थ्रेडेड एंड इवेंट ड्राइवन. इन नोड जेस यूजेस वन मेन थ्रेड एंड वर्क यूजिंग इवेंट. जैसे नोड जेस जो होता है वो एक मेन थ्रेड यूज करता है जो कि सिंगल थ्रेड होता है, और वर्क करता है यूजिंग इवेंट का यूज़ करके ये चलता है. console.log start, set timeout, console.log event executed, and console.log end. Output इवेंट रन्स व्हेन इट्स टाइम कम्स. जब इवेंट रन करता है जब उसका टाइम आ जाता है, मीन्स जो भी तुमने टाइम आउट वगैरह लगाया होगा उसके बाद में वो रन कर जाएगा इवेंट, जो नेक्स्ट इवेंट होगा. नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट. व्हाट इज नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट? इन node.js डज नॉट वेट फॉर स्लो वर्क. const file system equals to require file system, means fs dot read file for read, and test dot text
UTF-8 is a code and error, comma data, then console log data. It will console log data is a reading file, and file reads the all background program keeps running. बैकग्राउंड में प्रोग्राम जो है रन होता रहेगा और साथ में ये फाइल भी रीड हो जाएगी इस कमांड से। एंड V8 इंजन क्या होता है? V8 इंजन जो होता है हमारी जावा स्क्रिप्ट को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है और ये थोड़ा फास्ट रहता है। और एग्जांपल के लिए ये कोड ले सकते हैं सम वाला 10+20 का, जिसमें आपका सम प्रिंट होकर के आ जाएगा, जो कि मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे कि V8 इंजन समझ सकता है जो भी हम कोड लिख रहे हैं। वन लाइनर बोले तो ये हो जाएगा, नॉट जेएस रन्स जावा स्क्रिप्ट ऑन सर्वर यूजिंग V8 इंजन विद नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट। नॉन ब्लॉकिंग को हम असिंक्रोनस भी कह सकते हैं, सॉरी सिंक्रोनस भी कह सकते हैं। No, it will be asynchronous because it will not wait for another, it will continuously run without blocking. इवेंट लूप्स नॉट जेएस में हमारी हो जाती हैं कॉल बैक, मैक्रो स्टैक, इवेंट लूप्स जो बाकी रहती हैं वो, और ये कॉल बैक क्यू। जो कॉल स्टैक रहता है वो एग्जीक्यूट वन बाय वन, एक के बाद एक एग्जीक्यूट होता है कॉल स्टैक। पहले ए एग्जीक्यूट होगा फिर दूसरा एग्जीक्यूट होगा, जैसे एक स्टैक टाइप में बन जाता है। अब उसमें मान लीजिए मैंने ए डाला फिर बी डाला, फिर वो पहले बी जब पॉप आउट होगा तब वो ए पॉप आउट होगा, इस तरीके से। कॉल बैक क्यू माइक्रो स्टैक होता है स्टोर सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल फॉर अ टाइम, जिसमें हम कुछ टाइम आउट पीरियड देते हैं जिसके बाद में वो नेक्स्ट क्वेरी को रन करता है, उतना वेट करता है। सेट टाइम आउट ब्रैकेट इक्वल्स टू कंसोल डॉट लॉग बी कॉमा टाइम आउट 0। माइक्रो स्टैक क्यू स्टोर प्रोमिसेस देन promise dot resolve then arrow console dot log c। जैसे का माइक्रो स्टैक क्यू, इसमें हम प्रोमिसेस बनाते हैं जिस प्रोमिसेस के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। इवेंट लूप चेक करता है कि जो कॉल स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं है, और पहले माइक्रो स्टैक क्यू को रन करता है, उसके बाद में कॉल बैक क्यू को रन करता है। कॉल बैक क्यू कौन सा वाला? वही सेट टाइम आउट सेट करने वाला। माइक्रो स्टैक कौन सा? जिसमें प्रोमिसेस बनाते हैं हम, वो वाला। एंड कोड क्वेश्चंस, कोडिंग का ये तो आपको ट्राई रन करके देखना पड़ेगा, ये देख लेना। कंसोल डॉट लॉग ए सेट टाइम आउट कंसोल डॉट, ये हो गया प्रॉमिस हो गया, इसमें टाइम आउट लगे, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इसे सी को प्रिंट करके दे दो, अदरवाइज डी को प्रिंट कर दो। आउटपुट आ जाएगा ABCD। ये हो गया, ये हो गई कंडीशन हमारी इवेंट लूप की। क्या क्या इवेंट लूप्स हो सकती है इवेंट लूप में? बस ये ध्यान रखना हमसे क्या क्या पूछ सकता है, प्रोमिस, माइक्रो स्टैक, और एक ये जो था अपना क्या कहते हैं कॉल बैक क्यू। कॉल बैक क्यू में क्या यूज़ होता है? कॉल बैक क्यू में टाइम वो टाइम आउट या सेट टाइम आउट बता देना जो से हम लगाते हैं। और मॉड्यूल्स में, मॉड्यूल्स स्प्लिट कोड इनटू स्मॉलर फाइल्स। मॉड्यूल्स जो होते हैं कोड को स्मॉलर फाइल्स में स्प्लिट कर देते हैं, जिससे और बार बार इसे यूज कर सकें। कॉमन जेएस यूजेस एंड मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स के लिए मैट डॉट जेएस यूज होता है। मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स ए कॉमा बी, रिटर्न में ए प्लस बी। एंड ऐप डॉट जेएस कॉन्स्ट ऐड रिक्वायर मैथ स्लैश मैथ कंसोल डॉट लॉग ए कॉमा बी। ये कॉमनली जेएस का यूज होता है, यूज फॉर इन नॉट जेएस। इस तरीके से मॉड्यूल्स को स्प्लिट कर दिया जाता है, जिससे कि हम नेक्स्ट वाले अपने उसमें फंक्शन में उसे रीयूज़ कर सकें या नेक्स्ट फाइल में रीयूज़ कर सकें। ES में मॉड्यूल होता है एक मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट में यूज़ होता है, यूजेस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होता है। जैसे मैट डॉट जेएस में एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड ए कॉमा बी एरो फंक्शन इन कर्ली ब्रैकेट रिटर्न ए प्लस बी। फिर ऐप डॉट जेएस में वही ऐड को हम यूज़ कर लेंगे फ्रॉम स्लैश मैट डॉट जेएस कंसोल डॉट लॉग ऐड 2,3 विल बी 5। ये यूज़ को करता है कॉमन जेएस का नोड में, और ES मॉड्यूल्स का, जो कि मॉडर्न प्रोजेक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। ES मॉड्यूल्स मतलब एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल्स, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है।
core modules आर बिल्ट इन मॉड्यूल्स इन नोड जे एस, नो इंस्टॉल नीडेड, इसमें कोई भी इंस्टॉलेशन की नीड नहीं होती है। जैसे एफ एस फाइल सिस्टम में क्या आ जाता है, रीड राइट फाइल्स, और जिसमें हम रीड राइट करते हैं। सिंटैक्स इसका देखो तो इस तरीके से हो जाएगा, कॉन्स्ट इक्वल टू रिक्वायर एफ एस, इसे असाइन मतलब असाइन कर दिया, असाइन या डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में एफ एस डॉट रीड फाइल, टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, इसका यू टी एफ कोड एरर कॉमा डाटा एरो इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में इफ एरर इज अकर्ड देन कंसोल डॉट लॉग, एरर एरर को प्रिंट कर दो, अदरवाइज रिटर्न कंसोल डॉट लॉग डाटा, डाटा को प्रिंट कर दो अगर एरर नहीं है तो। पाथ होता है यूज टू हैंडल पाथ सेफ्टी, पाथ सेफ्टी के लिए हैंडल होता है। कॉन्स्ट पाथ इक्वल टू रिक्वायर पाथ, जो पाथ की जरूरत है, एंड कंसोल डॉट लॉग पाथ डॉट ज्वाइन डायरेक्ट नेम कॉमा फाइल नेम, जो पाथ है उसका नाम आ जाएगा, प्लस में जो फाइल का नाम है वो आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ओ एस यूज टू गेट सिस्टम इंफॉर्मेशन, कॉन्स्ट ओ एस इक्वल टू रिक्वायर ओ एस, कंसोल डॉट लॉग OS dot platform. These modules comes directly with Node.js and are used very often in interviews. HTTP module. The module is used to create basic server in Node.js. Const HTTP equals to require HTTP. Const server equals to HTTP. Create server request comma response. Response will be write in file hello node and response dot end and server listen into 3000 port. ये जो एक्सप्लेनेशन, जो रिक्वायर एच टी टी पी है वो इंपोर्ट कर रहा है एच टी टी पी मॉड्यूल को, और जो क्रिएट सर्वर है वो सर्वर को क्रिएट कर रहा है, और जो रिक्वेस्ट यूज़ होता है वो ब्राउज़र की रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, जो कि हम ऊपर एच टी टी पी की रिक्वेस्ट कर रहे थे। और जो रेस्ट डॉट राइट होता है वो डाटा को सेंड करने के लिए होता है। हम क्या डाटा सेंड कर रहे थे ऊपर, हेलो नोड, जो कि हम उसमें सेंड कर रहे थे। एंड रेस्ट डॉट जो एंड होता है रिस्पॉन्स को फिनिश करने के लिए होता है, कि यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स एच टी टी पी मॉड्यूल का फिनिश हो चुका है। और लिसन 3000 सर्वर रन ऑन पोर्ट 3000, जो कि मैं बता रहा था 3000 में रन होगा। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट वही आएगा जो हमने दिया था राइट में, जो कि था हेलो नोड, वो आउटपुट आ जाएगा हमारा। एक्सप्रेस जेएस इज अ फ्रेमवर्क बिल्ट ऑन नोड जेएस दैट मेक्स सर्वर क्रिएट सिंपल एंड फास्ट। एक्सप्रेस जेएस जो है बिल्ट इन फ्रेमवर्क है नोड जेएस का, जो कि सर्वर को क्रिएट करता है और उसे सिंपल और फास्ट बनाता है। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ये डिफाइन कर दिया ऊपर, डिक्लेयर कर दिया। देन कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, ऐप को डिक्लेयर कर दिया। देन ऐप डॉट गेट, ऐप में क्या ले लें हम, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट डॉट सेंड हेलो एक्सप्रेस आ जाएगा उसमें प्रिंट होकर के। और किस में रन करना चाहते हैं हम, ऐप डॉट लिसन इन 3000 पोर्ट नंबर 3000। एक्सप्लेनेशन, रन एक्सप्रेस मीन्स इम्पोर्ट एक्सप्रेस, एंड एक्सप्रेस ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस मीन्स ऐप को क्रिएट कर दो, ऐप नाम के सर्वर को क्रिएट कर दो। ऐप डॉट गेट मीन्स हैंडल गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, और रैप मतलब रिक्वेस्ट के लिए, एंड रिस्पॉन्स मतलब जो सेंड डाटा, जो रिक्वेस्ट डॉट सेंड मीन्स क्या डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, हमने क्या सेंड किया था, हेलो एक्सप्रेस सेंड किया था। और ऐप डॉट लिसन मतलब किस पोर्ट में स्टार्ट या रन करवाना चाह रहे हैं, जो कि हमें एच टी टी पी लोकल होस्ट 3000 में ओपन करके देगा। आउटपुट जो आ जाएगा हमारे इसमें आ जाएगा हेलो एक्सप्रेस। मिडलवेयर इज अ फंक्शन दैट रन्स आफ्टर रिक्वेस्ट कम्स एंड बिफोर रिस्पॉन्स इज सेंड। इट कैन चेक, मॉडिफाई और स्टॉप द रिक्वेस्ट। बेसिक मिडलवेयर फ्लो, रिक्वेस्ट मिडलवेयर रूट रिस्पॉन्स। जो फ्लो होता है मिडलवेयर फ्लो वो इस तरीके से होता है, हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, वो मिडलवेयर पे जाती है, देन रूट पे जाती है, फिर रिस्पॉन्स आता है हमारे पास। सिंपल एग्जांपल, const express equals to request express, const app equals to express app dot use request response next, console dot log middleware running next, go to next middleware or root, and app dot get request response, response dot send hello app listen 3000। टाइप्स ऑफ मिडलवेयर कितने टाइप के होते हैं, मिडलवेयर जो है बेसिकली इसमें तीन टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन मिडलवेयर, राउटर मिडलवेयर एंड एरर मिडलवेयर। जो एप्लीकेशन मिडलवेयर जो होता है वो होता है रन फॉर एवरी रिक्वेस्ट, हर एक रिक्वेस्ट के लिए एप्लीकेशन मिडलवेयर रन होता है। ऐप डॉट यूज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देन नेक्स्ट, कंसोल डॉट लॉग ऐप मिडलवेयर नेक्स्ट, ये हो गया इसका सिंटेक्स। एंड राउटर मिडलवेयर रन फॉर स्पेसिफिक रूट
रूट से जो राउटर मिडलवेयर होता है वो स्पेसिफिक रूट के लिए यूज होता है। const equals to require express and const router equals to express dot router and router dot use request response next console dot router middleware next and router dot get user request response and response dot send user page app dot use router। जो एरर मिडलवेयर होता है रन ओनली व्हेन एरर हैपन, जब रन होता है जब एरर आता है। एंड ऐप डॉट यूज एरर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, जो एरर आया उसे दे दें, फिर रिक्वेस्ट करेगा जिसके एरर के ये, फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा, देन नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा मिडलवेयर। एंड रिस्पॉन्स डॉट सेंड समथिंग वेंट रॉन्ग, उससे पता लग जाएगा कुछ ना कुछ एरर आया है हमारे इस मिडलवेयर में, ये सर्वर पे। मिडलवेयर रन्स बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टू प्रोसेस डाटा, जब डाटा प्रोसेस करते हैं उसके बीच में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में रन होता है हमारा मिडलवेयर। राउटिंग डिसाइड्स विच यूआरएल एंड एचटीटीपी मेथड विल रन विच कोड, कौन सा यूआरएल या कौन सा एचटीटीपी मेथड जो है किस कोड को रन करेगा। बेसिकली बेसिक रूट से देखें तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का यूज होता है, और कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस ऐप डॉट गेट फॉर यूजर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए गेट यूज हो जाता है। रेस्पॉन्स डॉट सेंड गेट ऑल यूजर्स, ये रिस्पॉन्स सेंड हो जाएगा। ऐप डॉट पोस्ट मतलब कोई हमें अपडेट उसमें पोस्ट किस लिए यूज होता है, हमें कुछ कोई यूज़र को ऐड करना है और तो उसके लिए यूज़ हो जाएगा। ऐप डॉट गेट यूजर्स रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स एंड गेट ऑल यूजर्स। उसके बाद में जो पोस्ट रहता है वो हमारा जो है पोस्ट, हाँ पोस्ट है, गेट पोस्ट, पोस्ट बता दिया था आई थिंक, ऐड न्यू यूज़र और पुट, हाँ पुट जो होता है अपडेट करने के लिए होता है। अपडेट न्यू यूज़र को आईडी किसके थ्रू, आईडी के थ्रू अपडेट करने के लिए बोल रहा है। लुकएट कॉमा रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स सेंड अपडेट यूज़र, मैसेज आएगा यूज़र अपडेट हो चुका है, अगर रन हो जाएगा तो। ऐप डॉट डिलीट यूज़र को डिलीट करने या हटाने के लिए यूज़ होता है। स्लैश यूज़र आईडी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एरो फंक्शन इन कर्ली ब्रेसेस रिस्पॉन्स डॉट सेंड डिलीट यूज़र, अगर डिलीट हो जाएगा तो ये सेंड हो जाएगा। ऐप डॉट लिसन 3000 मतलब 3000 पोर्ट में रन करना चाहते हैं, और इजी मीनिंग समझना हो तो ये हो जाएगा। जो गेट रहता है वो गेट स्लैश यूज़र रहता है, वो गेट यूज़र के लिए, पोस्ट टू ऐड यूज़र के लिए, एंड पुट अपडेट यूज़र बाय आईडी एंड डिलीट डिलीट यूज़र बाय आईडी के लिए यूज़ होता है। एंड आईडी मीन्स डायनेमिक वैल्यू एक्सप्रेस यूज़र 5, उससे किस यूज़र के बारे में बात हो रही है वो पता चल जाता है। और वन लाइनर राउटिंग मैप्स यूआरएल एंड एचटीटीपी मेथड टू अ फंक्शन, मैप्स के लिए होता है यूआरएल और एचटीटीपी के लिए कि कौन सा कोड रन होगा। जो रेस्ट एपीआई रहता है, रेस्ट एपीआई मीन्स एचटीटीपी मेथड, रेस्ट एपीआई जो होते हैं एचटीटीपी मेथड्स टू वर्क विद वन रिसोर्स, रेस्ट एपीआई जो है एचटीटीपी मेथड्स को अलो करते हैं कि जिसकी वजह से एक ही रिसोर्स के साथ में काम हो सके। एचटीटीपी का मतलब हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल इज अ फाउंडेशनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय रेस्ट एपीआई। ये एचटीटीपी जो होता है फाउंडेशनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि रेस्ट एपीआई के थ्रू यूज होता है टू एक्सचेंज डाटा बिटवीन क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट और सर्वर के बीच में डाटा एक्सचेंज करने के लिए हम इसका एचटीटीपी का यूज़ करते हैं, जो कि रेस्ट एपीआई के थ्रू यूज़ होता है, किस लिए, डाटा एक्सचेंज करना क्लाइंट और सर्वर के बीच में। एचटीटीपी मेथड की मीनिंग ये हो गई, इसमें ये 4 कमांड्स हो जाती हैं। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। गेट फॉर रीड डाटा, पोस्ट फॉर क्रिएट डाटा एंड पुट फॉर अपडेट डाटा, और डिलीट फॉर रिमूव डाटा। रिमूव डाटा मीन्स इसमें एक्सेस भी लेना देना हो सकता है, जैसे कि गेट में किसको एक्सेस है वो पढ़ रहे हैं, एंड पोस्ट में किसको एक्सेस देना है, पुट में अपडेट करना किसको एक्सेस देना है अपडेट करके दूसरे चेंज करके, और डिलीट में यूज़र को रिमूव करना। वन रिसोर्स मल्टी मेथड्स, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू, ये कोड आप देख लेना, यही ऊपर का समराइज करके कोड बता दिया गया है कि एचटीटीपी के क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, और एक्सप्रेस के कैसे यूज़ करते हैं, वही बताया। REST API uses one resource with different HTTP methods to perform CRUD operations। डिफरेंट HTTP CRUD operations के लिए यूज़ होता है। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, अब CRUD operations क्या होते हैं वो थोड़ा सा जान लेते हैं, उनके बारे में बता दूँ आप। जो हमारा HTTP मेथड होता है इसमें अगर CRUD ऑपरेशन की बात की जाए, जिसके आप इंटरव्यू को एक्सप्लेन करते हैं, जो REST API यूज़ होता है किस लिए, एक रिसोर्स को डिफरेंट HTTP मेथड्स को परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म क्या, CRUD ऑपरेशन। CRUD ऑपरेशन क्या, क्रिएट, रिमूव, अपडेट, डिलीट, ये होगा हमारे CRUD मेथड्स बोल लो, ऑपरेशन बोल लो। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट यूज फॉर डाटा सेंड बाय क्लाइंट
and response for data sent back by client, back by server. एंड एक्सप्रेस कोड ये हो जाएगा एक्सप्रेस को, जो रिक्वायर एक्सप्रेस कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस कैसे यूज करेंगे एक्सप्रेस को, तो ये डिक्लेयर कर दिया। ऐप यूजेस एक्सप्रेस डॉट जेसन रीड जेसन डाटा को रीड कर लेगा। ऐप डॉट पोस्ट स्लैश लॉगिन, लॉगिन में करना पोस्ट। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट फॉर डाटा रिक्वेस्ट बॉडी एंड रिस्पॉन्स डॉट जेसन सक्सेस ट्रू, ये रिस्पॉन्स आ जाएगा ट्रू वाला। देन किसमें इसमें 3000 पोर्ट में शो करना है, ओपन करना या शो करना। जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है वो डाटा फ्रॉम क्लाइंट ले रहा है, एंड रिक्वेस्ट डॉट जेसन है वो सेंड कर रहा है जेसन रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट कैरीज डाटा टू सर्वर एंड रिस्पॉन्स सेंड रिजल्ट बैक टू क्लाइंट। एरर हैंडलिंग इज यूज टू कैच एरर एंड सेंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल कॉन्स्ट ये तो इनिशियल इसे डिक्लेयर वगैरह कर लेंगे। कैन थ्रो न्यू एरर समथिंग इज वेंट रॉन्ग, ये गेट मीन्स ये मैसेज को शो दे देगा आपको। एंड ऐप डॉट यूज एरर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स स्टेटस 500 डॉट जेसन एरर मैसेज हो जाएगा और इसको में रन कर देना। एरर जो है एरर ऑब्जेक्ट है, जिसमें ऑब्जेक्ट में एरर आ रहा है, और स्टेटस 500 जो सर्वर एरर है वो है, और एरर मैसेज जो कि आपको शो करवाना है दिस इज एरर, और एरर मैसेज इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो आप। एरर मिडलवेयर हैंडल्स एरर एंड सेंड प्रॉपर स्टेटस एंड मैसेज। एरर मिडलवेयर जो होता है वो हैंडल करता है एरर को और सेंड करता है प्रॉपर स्टेटस। स्टेटस मतलब 5000 है, 404 है, या 2000 या 3000 है वो, और उसका प्रॉपर मैसेज जो आप टाइप करोगे। Asynchronous slash await. Asynchronous is used to handle synchronous code in a simple way. Example: code const fetch data, run, return new promise, resolve, set timeout, resolve data received 1000, ये टाइम तो लग गया। एंड कॉन्स्ट ये तो असिंक्रोनस का एग्जांपल है। अगर इसे एक्सप्लेन करें, जो असिंक्रोनस है जो होता है रिटर्न द प्रॉमिस, वो प्रॉमिस को रिटर्न करता है। अब इसमें प्रॉमिस कहाँ रिटर्न हो रहा है हमारा, ये देख लेते हैं। गेट डाटा वेट एंड रिटर्न डाटा, डाटा को रिटर्न कर रहा है, मीन्स प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है। सेट अमाउंट न्यू प्रॉमिस, रिजॉल्व है, रिजॉल्व को रिटर्न होगा डाटा रिसीव्ड, एंड इसमें रिटर्न डाटा, डाटा रिटर्न होगा मीन्स प्रॉमिस रिटर्न होगा, इस तरीके से। और गेट डाटा देन कंसोल डॉट लॉग, ये आउटपुट क्लियर है। और अवेट जो रहता है वेट फॉर सिंक्रोनस वर्क टू फिनिश, वेट करता है सिंक्रोनस वर्क जो है फिनिश हो जाए। वाई मेक्स असिंक्रोनस कोड easy to read and avoid callback hell in Node.js? Asynchronous code is fundamental concept that allows the platform to perform non-blocking and input-output operation efficiently using single-threaded event loop. The primary method to for writing asynchronous callback promises and modern asynchronous await syntax promises versus callback। जो हमारा प्रोमिसेस रहता है वो मतलब एक जैसे कमांड टाइप में होता है कि पर्टिकुलर मैसेज होना चाहिए। अगर ये फलानी चीज़ होती है, नहीं होती तो अपना जो भी कैच मैसेज है वो प्रिंट कर दो, मतलब एरर जो है वो प्रिंट करके दे दो। और जो हमारा कॉल बैक रहता है वो इसलिए रहता है कि जो काम जैसे कि हमारा जो भी हम टास्क रन कर रहे हैं उसके बाद में फंक्शन को भी पास कर सके, इसलिए होता है। फंक्शन कॉल बैक फंक्शन इज पास्ड एंड कॉल्ड आफ्टर वर्क इज डन, काम होने के बाद में इसे कॉल कर सकें। कैसे कॉन्फिगर टू एफ एस इक्वल टू रिक्वायर एफ एस एंड रीड फाइल ए डॉट टेक्स्ट यूटीएफ एरर कॉमा डाटा एरर फंक्शन इफ एरर रिटर्न कंसोल डॉट लॉग एरर कंसोल डॉट लॉग डाटा। फिर उसके बाद में कैन बिकम कन्फ्यूजिंग कॉल बैक हेल, इसी वजह से कॉल बैक हेल जो है कन्फ्यूजिंग बन जाता है। अब इसमें क्या बोला था, काम होने के बाद में आफ्टर वर्क डन फंक्शन इज पास, फंक्शन पास हो जाए। इसमें फंक्शन कहाँ पास हो रहा है, फंक्शन कौन सी एफ एस फंक्शन फाइल सिस्टम कंसोल डॉट लॉग, और फिर प्रोमिसेस पे आ जाते हैं। तो प्रोमिस जो यूज दैन कैच, पहले यूज दैन का यूज़ होगा, फिर उसके बाद में कैच का यूज़ होगा। फंक्शन डॉट रिक्वायर एफ एस डॉट प्रोमिस रीड के लिए प्रॉमिस डाला है, एंड देन डाटा प्रिंट होगा कंसोल डॉट लॉग डाटा, एंड कैच में एरर और इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग एरर, इस तरीके से एरर को प्रिंट कर देता है। इसका सिंटैक्स इस तरीके से चलता है, पहले अपना जो प्रॉमिस है वो रन होगा, उसके बाद में प्रॉमिस क्या है, रीड डाटा का रीड, प्रॉमिस में रीड फाइल के लिए कमांड डाली है, उसके बाद में देन जो भी डाटा है वो शो हो जाए, उसके बाद में एरर जो है, अगर एरर आता है तो एरर शो हो जाए।
ये डिफरेंट कॉल बैक जो होता है वो ओल्ड स्टाइल है, प्रॉमिस जो है न्यू स्टाइल है, क्लीनेबल है। और जो प्रोमिस अवॉइड कॉल बैक हेल्प, कॉम्प्रोमिस जो है कॉल बैक हेल्प से बचाता है, बार बार उसे कॉल करने का झंझट ना रहे। नॉट जेएस में रिक्वायर क्या होता है? रिक्वायर इज अ नॉट जेएस बिल्ट इन फंक्शन है जो कि यूज होता है इंपोर्ट मॉड्यूल्स फाइल्स पैकेज और करंट फाइल के लिए। लेट्स वन फाइल यूज कोड फ्रॉम अनदर फाइल और लाइब्रेरी। जो रिक्वायर होता है एक जो कोड होता है एक फाइल का वो अनदर फाइल में या लाइब्रेरी में यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। और एग्जाम्पल कॉन्स्ट एफ एस इक्वल टू रिक्वायर एफ एस आई में से ले लेंगे। फिर मीनिंग लाइन बाई लाइन, रिक्वायर एफ एस का मतलब लोड कर रही है फाइल सिस्टम मॉड्यूल को। और जो एफ एस है वो वेरिएबल दैट स्टोर एवरीथिंग एक्सपोर्ट बाय तो मॉड्यूल जो भी एक्सपोर्ट के थ्रू आया है मॉड्यूल्स को वो उसे स्टोर करता है एफ एस वेरिएबल। और एफ होस्टिंग एफ जो है एक बिल्ट इन नॉट जेएस मॉड्यूल है जो कि इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यू कैन डू लाइक एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक्रोनस एंड टेस्ट डॉट टेक्स्ट, और ये इसका कोड डाल देंगे UTF-8। तो इस तरीके से हम दूसरी एक फाइल को अनदर फाइल में यूज़ कर सकते हैं या मॉड्यूल या लाइब्रेरी में यूज़ कर सकते हैं, अनदर लाइब्रेरी में अलो कर देते हैं। फिर उसके बाद में ये है टाइप्स ऑफ रिक्वायर कितने टाइप के होते हैं? बिल्ट इन मॉड्यूल होता है जिसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। एक्सटर्नल मॉड्यूल होता है जिसे एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ता है, एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस के थ्रू। और जो अपना क्या कहते हैं एक्सटर्नल वाला रहता है उसे मतलब आपको कमांड देनी पड़ेगी, जैसे कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू रिक्वायर ऐप या एक्सप्रेस एक्सप्रेस लिखेंगे। फाइल सिस्टम रिक्वायर HTTP एंड का पाथ, ये सब पाथ को असाइन किया जा रहा है, डिक्लेयर किया जा रहा है। उसके बाद में लोकल फाइल या आपकी अपनी फाइल जो रहती है यूज़र राउट्स इस कमांड के थ्रू आ जाएगी। राउट से यूज़र के थ्रू आ जाएगी जो कि सेम फोल्डर उठा लेगी और सेम पेरेंट फोल्डर उठा लेती है। और UTF-8 इन रीड फाइल, UTF-8 क्या होता है रीड फाइल में? ये होता है प्रोमिसेस डॉट टेक्स्ट। UTF टेक्स्ट था, UTF हमें बताता है हाउ टू डिकोड द फाइल बाइनरी डाटा। अच्छा, ये इसलिए होता है जो हमारे बाइनरी डाटा की फाइल है उसे कैसे डिकोड करें और उसे रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है सिस्टम के लिए। रीड द फाइल एज ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट, नॉट रॉ बाइट्स से हटा करके ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। फाइल्स आर स्टोर्ड एज बाइनरी 0 1 के फॉर्म में स्टोर होती हैं। कंप्यूटर मस्ट नो विच कैरेक्टर इनकोडेड टू convert those bytes into text, and UTF is the most common text encoding in the world। UTF सबसे ज़्यादा कॉमन इनकोडिंग टेक्स्ट है जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। विद एंड विदाउट UTF, विद UTF एंड विदाउट UTF-8 कैसे यूज होता है? प्रोमिसेस रीड टेक्स्ट आउटपुट बफर 4860 इस तरीके से आ जाएगा, जो कि आपको बफर मिल जाएगा, रॉ डाटा दे देगा जो कि आप समझ नहीं पाओगे। और अगर UTF का यूज़ करते हैं 8 डॉट टेक्स्ट कॉमा UTF-8 तो आपको वही हेलो वर्ल्ड आपने जो लिखा था मैसेज वो प्रिंट होकर के आ जाएगा जो भी आपका प्रॉमिस था। ये क्लीन और रीडेबल होता है UTF। और व्हाट इज एक्जैक्टली UTF? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बाइट एंड कैन रिप्रेजेंट ऑल लैंग्वेज यूजेस 1 to 4 बाइट पर कैरेक्टर बैकवर्ड कंपेटेबल एंड ASC डिफॉल्ट इनकोडिंग फॉर HTML जावास्क्रिप्ट नोड.js फाइल्स। रीडेबल एग्जांपल जो ए डॉट टेक्स्ट है वो हमारा टेक्स्ट को कैरी करेगा जैसे हेलो। और UTF-8 जो होता है वो टेक्स्ट विक्टम्स अनरीडेबल और ब्रोकन विदाउट, अगर UTF का यूज़ नहीं करते, अगर करते हो तो रीडेबल में आपको दे देगा जैसे कि हेलो हेलो नॉट जो भी आपने लिखा हो। और UTF-8 स्पेसिफाइज द कैरेक्टर इनकोडिंग यूजेस टू कन्वर्ट फाइल डाटा, जो कि फाइल डाटा को कन्वर्ट करता है बाइनरी इनटू रीडेबल स्ट्रिंग में। UTF-8 जो है रीडेबल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। when not UTF not to use UTF, जब UTF यूज ना करना हो तो don't use UTF when reading binary फाइल को रीड करना पड़ेगा image डॉट PNG JPG वीडियो एग्जांपल इस फॉर्म में आ जाएगा। PDF इस फॉर्म में रखना पड़ेगा। और एग्जांपल FS डॉट रीड फाइल इमेज डॉट PNG अगर UTF यूज नहीं करते हैं तो। प्रो टिप्स, इफ यू आर रीडिंग टेक्स्ट फाइल ऑलवेज यूज UTF, इसलिए UTF यूज करना चाहिए। इफ़ यू आर रीडिंग बाइनरी स्किप, अगर आप बाइनरी को रीड कर रहे हैं तो UTF को वो स्किप कर दीजिए।
Environment variables are stored secret value like port password API. Environment variables जो होते हैं पोर्ट पासवर्ड और APIs को स्टोर करते हैं सीक्रेटली। और एग्जांपल के लिए require डॉट env डॉट configure, इसमें पासवर्ड वगैरह स्टोर हो जाते हैं। console डॉट log प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। डॉट env फाइल जो होती है वो पोर्ट 3000 में रन होगी। डॉट env वैसे तो इंस्टॉल करनी पड़ती है। और जो स्टोर सीक्रेट वैल्यू को इंस्टॉल करती है डॉट env हमें अलग से बनानी पड़ती है उसमें अपने फोल्डर में जब प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। प्रोसेस डॉट env पोर्ट एक्सेस वैल्यू env पोर्ट जो होता है वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए होता है डाटा सेफ हिडन। और जो ये डॉट env है इसे जो है हमारा डाटा सेफ रहता है और हिडन रहता है, इसे इन्वायरमेंट वेरिएबल कहते हैं जो कि डॉट env कन्फिगर करके फाइल में रहेगा रहेगा या लिखना पड़ेगा। अब JWT ऑथेंटिकेशन क्या होता है? जावा वेब टोकन इज यूज फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है जो कि कॉन्स्ट JWT रिक्वायर जावा वेब टोकन कॉन्स्ट टोकन जावा JWT साइन एंड ID1 सीक्रेट एक्सपायर्स इन 1 आवर कंसोल डॉट लॉग। जो जावा वेब टोकन होता है एक टोकन जनरेट करता है ऑथेंटिकेशन के लिए यूजर के लिए जो कि कोडेड फॉर्म में रहता है। और JWT साइन जो रहता है वो क्रिएट टोकन क्रिएट करने के लिए वो यूज़ होता है। ID1 मतलब यूज़र का डाटा उसकी आईडी क्या किस यूज़र के लिए कर रहे हैं। एंड सीक्रेट जो होता है की टू सिक्योर टोकन एक सिक्योर टोकन के लिए। एंड एक्सपायर्स इन कितनी देर में एक्सपायर हो जाएगा। टोकन इज सेंड टू क्लाइंट एंड यूज फॉर लॉगिन वेरिफिकेशन, ये लॉगिन वेरिफिकेशन के लिए टोकन यूज होता है। ID सीक्रेट की टू सिक्योर और कितनी देर में एक्सपायर होगा उसके लिए एक्सपायर कमांड का यूज़ करते हैं। और ये तो रिटर्न होता है वैसे। ये जब आप कोई पासवर्ड या लॉगिन फॉर्म वगैरह बनाते हैं या OTP जनरेट करते हैं उसमें यूज़ होता है ये। वैसे तो कोई यूज़ नहीं है इसका, लेकिन है इम्पोर्टेंट, है ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। कोर्स क्या होता है? कोर्स अलो करता है फ्रंट एंड बैक एंड टू टॉक फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्शन कम्युनिकेशन में हेल्प करता है टू ईच अदर व्हेन दे आर डिफरेंट ओरिजिन, दोनों अलग अलग ओरिजिन को कोड जो हो जाएगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस एंड कॉन्स्ट कोर्स रिक्वायर कोर्स हो जाएगा। कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, ऐप को एक्सप्रेस से कनेक्ट कर देंगे एंड सॉरी डिक्लेयर कर देंगे। और ऐप डॉट यूज़ कोर्स, ऐप को अलो कर देंगे कोर्स का यूज़ करने के लिए। ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, जैसे कि ऐप जो है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ले पाए कहाँ से? रिस्पॉन्स सेंड जो कि सेंड हो रहा है हमारे पास कोड से इनेबल किया गया है। और किस पोर्ट में रन हो जाए? 3000 में रन हो जाए। ऐप डॉट ले से 3000। ईजी मीनिंग इसकी देखें तो ब्राउजर ब्लॉक्स क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट, कोर्स रिमूव्स दैट ब्लॉक एंड वाई कोर्स अलो फ्रंट एंड टू एक्सेस बैक एंड फाइल अपलोड मीन्स अपलोड जो मल्टर जो होता है यूज़ होता है फाइल्स को अपलोड करने के लिए नॉट.js और एक्सप्रेस में। अब कैसे होता है? कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस एंड कॉन्स्ट मल्टर इक्वल टू रिक्वायर मल्टर, ये तो प्री डिफाइंड है कि इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। देन कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस कॉन्स्ट अपलोड इक्वल टू मल्टर एंड जस्ट अपलोड एंड ऐप डॉट पोस्ट को अपलोड सिंगल फाइल कॉमा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट सेंड अपलोड ऐप डॉट लेसन 3000। ईजी मीनिंग मल्टर फाइल अपलोड टूल, मल्टर जो है फाइल अपलोड टूल है और लेस्ट अपलोड ये फाइल सेव के लिए होता है डेस्टिनेशन वाला। और ये अपलोड सिंगल फाइल, एक फाइल अपलोड करनी हो तब के लिए यूज़ होता है। और इनका ये अपलोड सिंगल फाइल ऐप डॉट पोस्ट सिंगल फाइल जाकर सिंगल फाइल अपलोड करनी हो उस टाइम के लिए। याद रखना मल्टर फाइल अपलोड टूल है और डेस्ट ये फाइल कहाँ पे जाकर के सेव होगी। और अपलोड सिंगल फाइल जो कि फाइल का नेम आ जाएगा जहाँ फाइल लिखा है वो कि एक फाइल को अपलोड करनी हो उसके लिए। फाइल विल बी स्टोर्ड इन अपलोड्स फोल्डर। और सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। सिक्योरिटी यूज टू प्रोटेक्ट एप्लीकेशन हेलमेट लाइक प्रोटेक्ट एप्स बाय सिक्योर HTTP हेडर। HTTP जो होता है सिक्योर सर्वर प्रोवाइड करता है। कॉन्स्ट हेलमेट इक्वल टू रिक्वायर हेलमेट ऐप डॉट यूज हेलमेट। बाइक्रिप्ट यूज टू इनक्रिप्ट पासवर्ड, पासवर्ड इनक्रिप्ट के लिए यूज होता है बाइक्रिप्ट। कॉन्स्ट बाइक्रिप्ट रिक्वायर बाइक्रिप्ट एंड बाइक्रिप्ट है डॉट हैश 1234 जो भी आपका पासवर्ड है वो स्टोर हो जाएगा।
और देन हैश कंसोल डॉट हैश, वो पासवर्ड उसमें स्टोर हो जाएगा अपना बाइक रैपर में। रेट लिमिटिंग में तो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को लिमिट कर देना, या जैसे कि अटैक्स प्रिवेंट हो चुके हैं, जैसे कि आपने 10 रिक्वेस्ट को अलो किया तो 10 लोग ही रिक्वेस्ट कर पाएंगे उसमें। कोई सोचे डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाए, या फिर अनलिमिटेड रिक्वेस्ट भेज करके एक्सेस कर सके आपको उसको, या फिर उसे सर्वर क्रैश कर सके, तो वो नहीं हो पाएगा। मीटिंग कैसे होगी? कॉन्स्ट रेट इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस लिमिट कॉन्स्ट टाइम इक्वल टू रेट लिमिट विंडो MS 15 × 60 इंटू 10,000 मैक्स 100 आ सके, मैक्स पे 100। ये तो प्री डिफाइंड है, विंडो मैक्स में ये वाला कमांड डालना पड़ेगा। और समझने की चीज़ ये है, मैक्स 100 मीन्स आप 100 लोगों को अलाउ कर रहे हो इन मिली सेकेंड, मिली सेकेंड में होता है। एंड एप डॉट यूज लिमिट MS फॉर मिली सेकेंड, विंडो MS 1560 ये टाइम के लिए यूज़ हो रहा है, 1560 इंटू 1000। इजी मीनिंग हेलमेट जो होता है वो होता है सिक्योर हेडर प्रोवाइड करने के लिए। बाइक्रिप्ट जो होता है पासवर्ड इंक्रिप्शन मीन्स वही पासवर्ड सेविंग और सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। और लीड लिमिटिंग वो ब्लॉक करता है फालतू के रिक्वेस्ट को, जो कि मैंने पहले बताया था। एंड हेल्प्स कीप्स ऐप सेफ, इसकी वजह से ऐप जो हमारा सेफ बनता है। Performance cluster use to multiple CPU cores to run Node.js faster, and cluster app cluster और OS require OS include cluster। क्या ये तो क्लस्टर का कोड है, क्लस्टर समझ लो मल्टीपल सीपीयूज होते हैं तो उनको हेल्प करता है Node.js को और ज़्यादा फास्टर रन करने में, इसलिए क्लस्टर यूज होता है। और कैचिंग स्टोर सो इट लोड फास्टर नेक्स्ट टाइम, कैचिंग की वजह से नेक्स्ट टाइम के लिए उस चीज़ को फास्टर बना देता है। कैसे बनाते हैं? जैसे कोई फंक्शन है गेट डाटा है तो उसमें कैच अप्लाई कर दिया, रिटर्न कैच डाटा को जो हमारा पार्टिकुलर डाटा उसके लिए कैच डाटा इक्वल टू कैच डाटा। मान लीजिए ये कमांड या मैसेज है, तो इसे अगर नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा फास्टर प्रायोरिटाइज कर देगा। रिटर्न कैच डॉट डाटा, डाटा आपका प्रायोरिटाइज हो चुका है, प्रायोरिटाइज या फास्टर हो चुका है, हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। एंड कंप्रेस रिड्यूसेस रिस्पॉन्स साइज टू इंक्रीज स्पीड, कंप्रेस की वजह से हमारा रिस्पॉन्स साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से स्पीड बढ़ जाती है। रिस्पॉन्स क्या रिड्यूस किसे करता है? रिस्पॉन्स साइज को, और इंक्रीज क्या करता है? स्पीड को। ये कंप्रेस के थ्रू होता है। कंप्रेस इक्वल टू रिक्वायर कंप्रेशन एंड ऐप डॉट यूज कंप्रेशन, उसमें जो कमांड डाल देंगे। इजी मीनिंग क्लस्टर यूज फॉर CPU कोर्स के थ्रू यूज होता है। एंड कोचिंग यूज डाटा के लिए, कैचिंग डाटा यूज कर सको उसकी परमिशन के लिए, और नेक्स्ट टाइम उसे फास्टर कर देता है। एंड कंप्रेशन जो होता है हमारा जो रिस्पॉन्स साइज होता है उसे स्मॉल कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, लोडिंग वगैरह बाकी सब। तो वाई नोट जेएस इज़ अ सिंगल थ्रेड? नोट जेएस सिंगल थ्रेड क्यों है? क्योंकि इसमें जो है एक मेन थ्रेड होता है जो है जो ज़्यादा मतलब एक मेन थ्रेड होता है जो हैंडल मेनी रिक्वेस्ट यूजिंग नॉन ब्लॉकिंग। नॉन ब्लॉकिंग मीन्स असिंक्रोनस का यूज़ करके स्टे फास्ट एंड एफिशिएंट हो जाता है। सिंगल थ्रेड मतलब एक थ्रेड में काफ़ी सारे यूजर्स होते हैं, एक थ्रेड मतलब एक टास्क हो गया, एंड मल्टी थ्रेड मतलब वन टाइम पे मैनी टास्क हो गया, इस तरीके से होता है। इवेंट हाउ इवेंट लूप वर्क्स? इवेंट लूप कैसे काम होता है? इवेंट लूप से कॉल स्टैक एम्पटी एंड माइक्रो टास्क हो गए प्रोमिसेस रन करना, और कॉल बैक्स मीन्स टाइम आउट सेट कर देना। ये हो गए इवेंट लूप्स जो यूज होते हैं पर्टिकुलर इवेंट को कुछ टाइम कैप के साथ रन करना, जिससे एफिशिएंसी बनी रहे। Middleware is a functional that between request and response to check or modify data, and difference between put and patch। put जो होता है अपडेट करने के लिए होता है डाटा को, पूरे डाटा को, एंड पैच जो होता है अपडेट करता है पार्शियल डाटा के लिए यूज होता है, पार्शियल डाटा अपडेट के लिए होता है पैच। और पुट जो है इंटायर डाटा को अपडेट के लिए यूज होता है। हैंडल एरर्स यूजिंग मिडलवेयर, मिडलवेयर का यूज़ करके हम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। ये वही ऊपर वाला होगा। एंड Node.js हैंडल मल्टीपल यूजर्स, एंड Node.js यूजेस इवेंट लूप। एंड Node.js जो है इवेंट लूप का यूज़ करता है। इवेंट लूप कौन कौन सी? माइक्रो स्टैक और प्रोमिसेस, और एक और जो था क्या था, कॉल स्टैक इम्पटी का जो रन हो चुका है उसे हटाते जाओ। टू हैंडल मैनी यूजर्स एट सेम टाइम, इसे मैनी यूजर को एक टाइम पे हैंडल कर सकता है। और मल्टीपल यूजर्स मीन्स एक थ्रेड में एक टास्क के लिए होता है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा लेक्चर कवर हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कॉमेडी का पिटारा बाय गोपाल।